Okay, so you should be on your page number 10. Now, as we talked before, this chapter is based on traditional handicraft and fine arts. Now, these traditional handicrafts and fine arts, all these are continued in India. They are performed in India since ancient times. Okay, and if you see the literature, if you see the ancient books, then how many types of arts are mentioned? Yes, correct. There are 64 different types of arts mentioned in our ancient Indian culture. And out of them, we are going to learn many of these arts in this chapter itself. If you remember, we have already learned about the clay work, the weaving work, which includes hand weave and embroidery. Okay, and today we are going to start with leather industry. Any doubts? Anybody till now? क्ले, हैंड वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, वहां तक किसी को डाउट नहीं है? Okay, then let's start with leather work. Now, in the previous lecture itself, I told you that leather is processed from removing uh, the skin of the animals, then washing it, polishing it, drying it, making different things, all of these things. तो ये जो एक्टिविटी है of leather, making things from leather, which industry it is known as, do you remember? Yes, very good. It is known as tanning. Okay, ये leather work जो है उसको बोलते हैं tanning. Now we know that since primitive times, जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, when the man was primitive, at that time he used to live in the forest itself. Forest में, caves में, या तो trees के hollows में रहते थे. तब से लेकर they are using the skin of animals. They used to cover their bodies with the help of the leather, with the help of skin of animals. Right? तो ये आर्ट भी बहुत ही एंशियंट है. Okay, let's do the reading work. I want pencils in your hand, all of you. Skin of dead animals was used for various purposes in ancient India. After the death of animal, its skin was processed in a traditional manner. Now, I told you what is this manner: removing, polishing, drying, etc. Leather was prominently used for making masak. Now, what is this masak? A leather bag for fetching water. और ये जनरली डेजर्ट एरियाज में ज्यादा यूज होता था. अगर आपने किसी मूवी वगैरह में देखा है तो डेजर्ट में यू नो दैट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय डेजर्ट, तो वहां बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सनलाइट प्यास बहुत लगती है, यू फील थर्स्टी वेरी मच. तो इसके लिए यू नीड टू कैरी वाटर. ना आप चलो आजकल तो बॉटल्स है, वाटर कूलर्स है, जग है, जिसमें आप पानी ठंडा रख सकते हो. लेकिन उस टाइम पे इफ यू वांटेड टू स्टोर कोल्ड वाटर, तो वो लोग एक लेदर का बैग बनाते थे. यस, मुस्तान सिरज टोल्ड कि अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है, द मूवी बॉर्डर, तो उसमें ये चीज दिखाया गया है, क्योंकि वो भी वहां पर राजस्थान साइड था, डेजर्ट एरिया में. तो लेदर का एक बैग बनाते थे in which they used to store water and they could use it during traveling. This bag of water made of leather is known as masak. This can be asked in 1 mark. Okay, any doubts in masak? Anybody? Okay, और क्या क्या चीजें बनती थी? कोस, ड्रम, ढोलक, तबला. नाउ कोस इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय फार्मर्स, जिसमें लेदर का हैंडल में जो ग्रिप होती है वो लेदर की होती है. समझ में? जैसे अगर आप लोग स्कूटी एक्टिवा चलाते हो तो आप जहां से हैंडल को पकड़ते हो वहां पर लेदर का कवर होता है. ड्यू टू दिस वट एवर दैट योर हैंड डज नॉट स्लिप. राइट, तो कोस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द फार्मर्स, बट उसकी जो ग्रिप होती है उसमें लेदर इज यूज. ड्रम, ढोलक, तबला, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, उसका जो है वो लेदर से बनता है, वो बजाने वाला सर्कल. यस और नो?
ब्रैकेट में दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमें ऑलरेडी पता है. एंड बेलोज. नाउ बेलोज इज समथिंग न्यू फॉर अस. इट इज यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर. अच्छा वो बाद में. ब्लैक स्मिथ, हु इज दिस ब्लैक? वत्सल, आई कैन नॉट सी यू. ब्लैक स्मिथ मतलब कौन? एनीबॉडी? सॉरी. वुड का जो बनाते हैं मुस्तासिर, उसको बोलते कारपेंटर. गोल्ड. हाँ, उसको बोलते गोल्ड स्मिथ. गोल्ड वाले को गोल्ड स्मिथ. ब्लैक स्मिथ. कोलसे का मतलब इट इज यूज फॉर बर्निंग. बट एक्चुअली ब्लैक स्मिथ इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम मेटल, जिसको हम बोलते हैं लुहार. लुहार सुना है? हाँ, लोखंड. नॉट ओनली लोखंड, बट ऑल द मेटल्स. यस. आई कैन नॉट सी नीर, ध्रुवीन एंड चंदानी. ओके. तो ये ब्लैक स्मिथ्स क्या करते हैं? दे मेक थिंग्स फ्रॉम मेटल. ओके. अब मेटल को शेप देने के लिए इट हैज टू बी मेल्टेड. ये तो शायद आपको पता ही होगा. वो क्या करते हैं? वेल्डिंग. वेल्डिंग वालों को देखा है ना? वेल्डिंग वाला क्या करता है? एकदम फोर्सफुली फायर से दे मेल्ट द मेटल. राइट. सपोज आपकी विंडो की ग्रिल टूट गई है, तो वो क्या करेगा कि वो ग्रिल को इतना टेम्परेचर देगा दैट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. और जैसे मेल्ट होता है वो विंडो के साथ ऐसे स्टिक कर देता है. और जैसे वो ठंडा होता है वो फिट हो जाता है. आई थिंक नो दिस प्रोसेस. यस और नो? ये प्रोसेस पता है ना आपको? ओके. तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है? ही हैज टू वर्क विथ फायर कंटिन्यूअसली. वो कंटिन्यूअसली फायर पे काम करता है बिकॉज ही नीड्स टू मेल्ट द मेटल. तो आपको पता है कि जहां पर आग लगती है वहां पर स्मोक होता है, धुआं होता है. राइट. तो क्योंकि वो धुआं आपके आंख में, आपके नाक में, आपके मुंह में जा सकता है, तो उसको कंटिन्यूअसली हवा देते रहते हैं ताकि हवा वो स्मोक आजू बाजू चले जाए. राइट. तो वो हवा देने वाला जो चीज है उसको बोलते बेलोस. वो पाइप के शेप का भी हो सकता है. पंखे के वो जो हैंड फैन होता है ना, ट्रेडिशनल, आपने देखा होगा. देखा है? यस तो बोलो तो बढ़ू. आई स्टिल कैन नॉट सी ध्रुवीन एंड वत्सल. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग. ध्रुवीन एंड वत्सल लास्ट टाइम. ओके. तो in short, blacksmith, when he is working with fire, just to avoid the extra smoke, वो स्मोक को आजू बाजू उड़ाने के लिए either he uses a pipe or he uses a type of instrument which is like a hand fan, right? जो कि thick leather से बना है. In English it is known as a bellow. Am I very clear, all of you? Am I clear? Okay. So in short, what things are made from leather? One is masak, मतलब वो पानी का बैग. Then one is कोस, that farmer वाला instrument. Then drum, ढोलक, तबला, bellows used by blacksmith. Plus footwear, leather belt to tie animals. घोड़े को आपने देखा है वो जो लगाम होती है उसकी. That is made of leather to tie animals. Leather was also used to prepare shield, which was used during wars. I think you all have seen a shield. राइट. सर्कल होता है जनरली. वो कैप्टन अमेरिका तो देखा ही होगा आपने. राइट. तो वो शील्ड को वो लोग बैग की तरह से पहनते हैं. देखा है कभी? ये बाजीराव मस्तानी और तानाजी, वो सब अगर आपने मूवीज देखी, दे वेयर अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट ताकि तीर ना लगे. और उसको टाई करते हैं पीछे बेल्ट पे. दैट बेल्ट इज मेड ऑफ लेदर. Okay, so leather was also used to prepare shield, which was used during wars. Any doubts in this paragraph? अब अभी आ रहा है?
अभी आ रहा है? ओके. Okay, fine. Leather industry had a prominent place in ancient India. Well knitted Mojdi of Rajasthan. I think you all know what is Mojdi, no need to explain. Yes or no? Mojdi पता है ना? Okay. So well knitted Mojdi of Rajasthan, shoes, leather knitted purses, belts and other things made up of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam and whip were very much in use. Right? Animals के लिए खास लेदर की इंस्ट्रूमेंट्स यूज होती थी. क्या क्या? साज मतलब सीट जिसके ऊपर आप बैठते हो, पलान जो जिससे वो सीट टाई करते हैं, लगाम जिससे वो खींचते हैं हॉर्स या कैमल को, विप जिससे वो मारते हैं. अगर सीधा नहीं चले तो मारना भी पड़ता है, हंटर जिसको हम बोलते हैं. राइट? तो ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स which were used for animals specially were made of leather. Clear, all of you? Chalo, next is diamond, bead work and enamel work. Now, in this topic, you can see there are 3 paragraphs. First paragraph tells us about the diamond work. What is diamond? Heere. What is bead? Bead मतलब मोती. मोती देखे है ना? Okay. So first paragraph tells us about the diamond work of India. Second paragraph tells us the bead work of India, हीरे और मोती. And third is enamel work. Now what is this enamel? ये शायद मैंने आपको नहीं, वो मैंने आपको लिखवाया था मीनिंग्स में, याद रख करो. Ruby is a type of diamond. I'm telling about enamel work. What is this enamel work? Yes. ये मैंने आपको सिखाया था, मीनिंग भी लिखवाया था. व्हेन यू पॉलिश एनी मेटल और वुड एंड मेक इट स्मूथ, जिसको आप फाइनल टच देते हो टू मेक इट मोर एट्रैक्टिव, इसको बोलते हैं एनिमल वर्क. तो डायमंड एंड बीड्स क्या है? हीरे मोती, वो आप किसी में भी स्टिक करते हो या फिट करते हो. राइट? वो फिटिंग करने के बाद उसका जो आप फिनिशिंग वर्क देते हो, पॉलिश करते हो, दैट इज नोन एज एनिमल वर्क, विच इज एक्सप्लेन्ड इन थर्ड पैराग्राफ. समझ में आ रहा है? द टाइटल डायमंड वर्क, बीड वर्क एंड एनिमल वर्क. यस और नो? यस. ओके. नाउ दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू लर्न अबाउट एंशिएंट इंडिया. आजकल भी डायमंड बीड एनिमल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया. ओके, लेट अस स्टार्ट. इंडिया हैज 7,507 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. पहले तो इसको अंडरलाइन करो. This is as in one mark. 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. मतलब ऊपर गुजरात से लेके नीचे साउथ में जाओ, फिर वेस्ट बंगाल की तरफ जाओ, पूरा जो नीचे का वी शेप है ना, वी नो इंडिया इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. राइट? ये पूरा मेजर करो तो इट इज मोर देन 7000 किलोमीटर. अब इतना सारा कोस्ट लाइन है तो डायमंड्स और बीड्स तो होंगे ही ज्यादा. आपको पता होगा बीड्स वो शेल्स में से मिलते हैं. सी शेल्स देखे ना, वो ऐसे करके खुलते हैं, बीड्स होते हैं. आई थिंक यू हैव सीन दीज थिंग्स. Okay. So India has 7517 kilometer long coastline surrounding from all 3 directions, east, west and south. East में क्या आता है? नहीं, water body. I'm talking about water. Which water body? Bay of Bengal. In the west, Arabian Sea, and to the south, इंडियन ओशन. राइट? अब इतने सारा वाटर है तो डायमंड्स बीड्स भी मिलेंगे. सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी. देयर हैज बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स. जेम्स आर अ टाइप ऑफ प्रेशियस स्टोन्स. ओके, अलग अलग कलर के जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसको बोलते हैं जेम्स.
वो खाने वाली जेम्स बिल्कुल नहीं. Okay. So gems and diamonds since ancient times. Since ancient times, trade of diamond and beads was carried out through sea routes with different countries across the sea. अब क्योंकि सी है तो डायमंड्स एंड बीड्स होंगे, प्लस वाटर एरिया है तो ट्रांसपोर्टेशन भी वहीं से होगा. तो थ्रू वाटरवेज lot of transportation of diamonds and beads was carried out in India since hundreds of years. Okay? Diamond studded ornaments. Diamond studded ornaments मतलब क्या? What do you mean by diamond studded ornaments? Yes, इसको हम बोलते हैं हीरा जड़ित. Studded means fitted. Underline the word studded and write the meaning fitted. ऑर्नामेंट्स बनाते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर किसी के भी, और उसमें डायमंड फिट करते हैं, स्टड करते हैं. ठीक है, जैसे आपने राजा महाराजा का क्राउन देखा है अगर, तो वो क्राउन में हीरे होते हैं, दे आर डायमंड स्टडेड. ओके, so diamond studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long. The world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only, but they have been taken away. उसकी तो स्टोरी आपको पता ही होगी. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. Gold तो सब लोग पहनते थे, लेकिन rich people, royal people, they used to wear diamond jewelry. Okay? Then diamonds, rubies, beads, emerald and topaz. These are some of the names of precious stones. अलग अलग कलर के अलग अलग stones हैं. They were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. of kings. ये सभी precious stones वो कहाँ यूज करते हैं? थ्रोन में, मतलब सिंहासन. राजा का अगर सिंहासन आपने देखा है तो जहां पर ऐसे हाथ रखते पीकॉक शेप का, और उसमें पूरा डायमंड्स एंड बीड्स. इवन अगर ये रामायण महाभारत देखते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो थ्रोन पूरा सिंहासन इट इज decorated with beautiful stones. Adorn means to beautify. Crown जो मुकुट पहनते हैं, ज्वेलरी जैसे ब्रेसलेट, गार्लैंड वो जो नेकलेस होते हैं, everything used to have diamond and bead work. Bead work is also found prominent in Gujarat. Gujarat has a very long coastline, so we have a lot of bead factories in Gujarat. The beautiful bead तोरण पचित. तोरण आई थिंक बीड से बने हुए तोरण देखे हैं आपने? Yes or no? बीड्स के तोरण देखते हैं? मोती, तो फर्स्ट लाइन में तो बताया मोती. ठीक है, स्पेशली अगर आप ये जो भरवाड़ लोग होते हैं, भरवाड़ के घर जाओगे ना, तो वहां पर वो मोती का तोरण, फिर मोती का वो कलश, फिर वो आपको पता है सर के ऊपर जो कलश है वो एक सर्कल जैसा इंडोनी रखते हैं. इंडोनी पता है आपको? मतलब पहले के जमाने में अगर आपको पता है तो जब लेडीज सर पे वो पानी का मटका लेकर जाती थी, तो पानी का मटका तो ऐसे शेप का होता है, तो वो तो डिग डिग करके गिर जाएगा. तो सर के ऊपर एक ऐसा स्टैंड रखते थे, ऐसा वाला. ठीक है, और उसके ऊपर ये मटकी रखेंगे तो इससे बैलेंस होगा. तो दिस थिंग इज नोन एज इंडोनी. क्या बोलते हैं? इंडोनी. तो ये भी पूरा मोती का बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, फिर बहुत सारे शो पीसेस बनाते हैं. कलश जो होता है पिक्चर, ये पूरा बीड से स्टड करते हैं. ये थोड़ा शेप रॉन्ग है. कलश देखा है ना आपने? छोड़ो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, आपको नहीं मजा आएगा, थोड़े हाई लेवल की है. ओके, सो इन शॉर्ट, स्पेशली इन गुजरात, किधर गया? हाँ, bead work is also found prominent in Gujarat. The beautiful bead तोरण पचित, then pot, pot को भी तोरण से कर देते हैं. बारी that is door grill and frame, बारी को भी मोतियों से डेकोरेट करते थे. चाकड़ा that is a wall piece. इसका मीनिंग हमने इसी पेज के फर्स्ट लाइन में लिखा था, इफ यू रिमेम्बर. चाकड़ा मीन्स अ वॉल हैंगिंग. ठीक है. डेकोरेटिव कोकोनट,
यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज। अगर आप किसी की एंगेजमेंट में गए हो, सगाई में, तो आपको पता होगा उसके हाथ में नारियल होता है ना। तो पहले क्या करते थे कि वो जो ओरिजिनल नारियल है या तो ओरिजिनल रखते थे, या रिच पीपल क्या करते थे, रॉयल पीपल, वो पूरे नारियल जैसा शेप बनाते थे, मेटल से, प्लास्टिक से, वुड से, वॉटेवर, और वो पूरा जो है मोती के उससे डेकोरेट करते थे। तो मोती वाला नारियल देते हैं हाथ में। आजकल भी बहुत जगह पर आप अगर एंगेजमेंट में जाओ तो मार्क करना, ठीक है। इफ यू गो अब नेक्स्ट, देखा है ना आप किसी के एंगेजमेंट, हाँ, डेकोरेशन में भी यूज होता है। तो अगर कभी कोई एंगेजमेंट की इनविटेशन आती है तो सिर्फ मेनू मत देखना, वहाँ क्या विधियां चल रही है वो भी देखना। उसमें वो आपको दिखेगा मोती से पूरा डेकोरेट किया हुआ कोकोनट, ठीक है। हाँ हाँ, ये रुमाल रख के उसके ऊपर रखते, करेक्ट। सो डेकोरेटिव ना कोकोनट्स यूज एट टाइम ऑफ सेरेमनीज, जिसको बोलते हैं लग्न ना नारियल, लग्न ना नारियल। ईंटोड़ी, जो मैंने अभी आपको बताया सर के ऊपर रखते हैं। मोड़िया, नेट विच कवर्स द माउथ ऑफ अ बुलक और हॉर्न्स, बुलक काट को भी वो डेकोरेट करते थे, है ना। आपने वो सजा सजाया हुआ बुलक देखा है, तो उसके उसके फेस के ऊपर मास्क रखते थे, उसके सिंग को डेकोरेट करते थे, तो वो पूरा मोतियों से बनाते थे, राइट, जिसको बोलते मोड़िया, ओके। देन हैंड फैन, हैंड फैन में भी मोती का डेकोरेशन करते थे। एनिमल बैक कवर, जिसको बोलते थे झूल। अब जब एनिमल्स के ऊपर बैठते हो ना, हॉर्स के ऊपर, कैमल के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर, तो उसका जो सीट है दैट इज अगेन डेकोरेटेड विद मोती। ऑल आर knitted इन अ यूनिक आर्टिस्टिक वे, ओके। एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दीज वर्ड्स? ये सब ट्रेडिशनल वर्ड्स है, स्पेशली गुजरात सौराष्ट्र में यूज होते हैं। हाँ बेटा, okay, now let's move to the animal work. India has been a leading country in jewelry since time immemorial. Immemorial means since lot of time. India is the only country in the world where expertise can be seen in animal work apart from gold and silver work. Gold silver का बनाते हैं, उसमें animal work decorate करते हैं. Animal work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue in the gold silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, chains, etc. गोल्डन या सिल्वर कलर का ऑर्नामेंट, कलर में सॉरी, गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। फिर वो ऑर्नामेंट्स में डेकोरेशन के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स डालते हैं। गर्ल्स को पता होगा, वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्रि, है ना। तो उसमें रेड, ग्रीन, येलो का जो अंदर कलर है वो फिलअप करते हैं। आजकल तो ट्यूब्स वगैरह मिलती है, मशीन होते हैं जिससे डायरेक्टली, तो वो ऑर्नामेंट्स किस तरह से बनाते हैं। सपोज इफ ये कोई आपका नेकलेस है, ठीक है, तो वो नेकलेस ये वाला जो है सर्कल, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। सपोज ये वाला है, तो उसमें वो ऐसे फ्लावर की डिजाइन्स करेंगे। ये पूरा होगा गोल्ड का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दैट यहाँ पर येलो कलर फिल करेंगे, यहाँ येलो फिल करेंगे, बीच बीच में ऐसे ब्लू फिल करेंगे, राइट। तो दिस रेड कलर इज मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर और मेटल वॉट, और ये जो बीच में कलर फिल करते हैं टू एडोन इट, टू ब्यूटिफाई, इसको हम बोलते हैं एनिमल वर्क। एम आई वेरी क्लियर? और प्योर गुजराती में इसको बोलते हैं जड़तर। जड़तर, मम्मी को बोलना कि जड़तर वाला कोई आपके पास सेट है तो दिखाओ, होता ही है सबके पास। क्लियर? एनी डाउट्स? एनिमल वर्क, एनीबॉडी? Okay, fine. Experts of animal work are seen especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad. यहाँ पर कारीगर है जो स्पेशली एनिमल वर्क करते हैं। नेक्स्ट कम्स द जरी वर्क। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज जरी। जरी पता है ना? ओके, लेट अस सी हाउ इज दिस यूज्ड।
Jari work is seen in India since ancient time. Golden and silver threads are woven with clothes and embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes. Surat is a prominent place for jari work. Knitting and embroidery of jardoshi work. मतलब जरी इज इन द पाउडर फॉर्म, उसी पाउडर के को प्रोसेस करके जब आप थ्रेड बनाते हो और वो थ्रेड से सिलाई करते हो, एम्ब्रॉयडरी करते हो, तो उसको बोलते हैं जरदोशी। समझ में आ रहा है? जरी से बने हुए थ्रेड और वो थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी मतलब जरदोशी। एनी डाउट्स? ग्लिटर मीन्स जरी, जरी को इंग्लिश में ग्लिटर बोलते हैं। ओके, so Surat is a prominent place for jari work. Knitting and embroidery of jardoshi work have a unique beauty. Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, gharchoda, etc. bordered with jari if needed. Saris आपको पता है, पानेतर इज अ स्पेशल साड़ी जो कि ब्राइड पहनती है शादी के टाइम, और शादी के टाइम ही जब लड़के वाले साड़ी देते हैं उसको बोलते हैं घरचोड़ा। तो साड़ी तो साड़ी है ही, पानेतर इज ऑल्सो टाइप ऑफ साड़ी, घरचोड़ा इज ऑल्सो टाइप ऑफ साड़ी। लेकिन पानेतर जो है वो मम्मी के घर से होती है, घरचोड़ा जो वो इन लॉज के घर से होता है। और क्योंकि वो शादियों में पहनते, दे आर वेरी हेवीली डेकोरेटेड एंड हियर दे यूज दिस जरदोशी वर्क। Am I clear, all of you? Any doubts? Okay, now comes, go to the next page, metal work. Engraving मतलब मेटल को ऐसे एनग्रेव, आपको पता है उसको ऐसे क्या बोलते हैं, हैमर और नेल से, हाँ हैमर और नेल से ऐसे टक 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 करके उसको पूरा शेप देते हैं, कहीं पर काटते हैं, कहीं पर मेल्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एनग्रेविंग। Okay, now let's see the work of metal in ancient India. अब मेटल में क्या क्या आता है? कॉपर, आयरन, जिंक, ब्रोंज प्लस गोल्ड एंड सिल्वर आर आल्सो मेटल्स। ये आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा। यस और नो? पढ़ा है ना साइंस? गोल्ड, सिल्वर आर आल्सो टाइप ऑफ मेटल्स। Let's see. Metal work is also a very old form of an art of India. Metal age began and developed after Stone Age. Stone Age में men generally use stone and wood. और फिर उसको पता चला कि when you dig the land you get some shiny things जिसको हम बोलते हैं metals. और the first metal found was magnet metal. Do you know which was the first metal that men discovered? शायद नहीं, it's पक्का कॉपर। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैन, और इसीलिए उसको कॉपर एज भी बोलते हैं। फिर उन्होंने जो कॉपर का यूज करना शुरू किया, वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट इज नोन एज कॉपर एज, और वो आया स्टोन एज के बाद। ओके, द आर्टिजन्स ऑफ लोथल, लोथल मतलब विद सिविलाइजेशन, लोथल कौन से सिविलाइजेशन में पढ़ा था हमने? यस, इट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब के टाइम का एक बहुत ही बिजी पोर्ट हुआ करता था लोथल, जो कि अहमदाबाद से बहुत नजदीक है। राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लोथल। द आर्टिजन्स ऑफ लोथल में डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल, ड्रिल। सिकल आपको पता है ना, ऐसे सी शेप का होता है और नीचे वुडन हैंडल होता है। अगर वो चेन्नई एक्सप्रेस देखा है तो वो शाहरुख खान वो व्हील को ऐसे कट कर देता है, वो उसको हीरोइन को जब भगा के लेके जाता है ना। हाँ, दैट इज अ सिकल। एक्चुअली वो फाइटिंग में यूज नहीं होता है, वो क्रॉप्स को कट करने में यूज होता है। आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। याद आया ना? है ऐसा होता है, और ये वुडन का इसका हैंडल होता है, और इसको वो क्रॉप्स को कट करते हैं। हाँ, ठीक है। और ड्रिल, ड्रिल मतलब इलेक्ट्रिक ड्रिल, ड्रिल बिल्कुल नहीं।
राइट। एक ड्रिल मतलब ये ऐसा ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर यहाँ पर जब आप ऐसे ठक ठक करते हो तो यहाँ से नीचे जो पॉइंट है वो जमीन में अंदर जाके जमीन को डिग करता है। समझ में आ रहा है? सिकल एंड ड्रिल, ऑल ऑफ यू? ओके। सो लोथल में दे यूज वेपन्स लाइक सिकल एंड ड्रिल, कर्व्ड सो, कर्व जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एंड नीडल, नीडल वाज आल्सो मेड फ्रॉम मेटल्स विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। मोरओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। अभी तो क्ले की बहुत जरूरत नहीं है, वुड और स्टोन की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमें मेटल मिल गया है। तो दे यूज टू मेक यूटेंसिल्स, आइडल्स मीनिंग स्टेच्यूज, एंड इवन पॉट्स आउट ऑफ मेटल। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब वेपन्स, दोनों को साथ में अंडरलाइन करो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, अंडरलाइन इट टुगेदर and write the meaning weapons. Arms and ammunition for wars were made up of metal. Gold and silver were used for making ornaments. Copper, brass and bronze were used to make utensils and idols, whereas iron was used to make instruments and weapons. So these are different metals and the different uses of metals. Any doubt? Anybody? Okay. Next comes the wooden art. I don't think any need is there to explain the title wooden art. आपको पता है ना? Men, trees and forests are closely associated with each other. Initially, wood was used as firewood. Later on, for making weapons, construction of buildings and other construction work. पहले wood का एक ही यूज था, जलाकर उससे फायर क्रिएट करो और उस पे खाना पकाओ. But then wood was also used for making weapons. उसके जो handles हुआ करते थे. Plus for construction also. Doors and windows were made of wood. आज भी आप देख सकते हो, it is made of wood. Okay? Gradually, wood was used for different purposes like making idols. What is an idol? Yes, फिर wood, पहले wood use होता था as a firewood. Then weapons, then construction, then the use of wood increased, like making idols, toys for children, wooden pillars, windows and doors, small huts on the top of terrace. Terrace में वहां पर ऊपर hut बनाते थे. Thrones for the kings, chairs and grills. Any word you do not understand? I think all the words are easy. In this way, wood carving was developed. Wooden furniture like swings and toys, wooden के जो झूले होते हैं, swings and toys of Idar and Sankheda in Gujarat are well known. आज पर कल भी कोई बड़े से कोई बंगलो बनाता है तो इधर से या संखेड़ा से झूले बनाने का ऑर्डर्स देते हैं वो लोग. It is very well known even today. So this is something about the wooden art. Any doubts? Okay, next comes the inlay work which we will continue tomorrow. Inlay क्या है, उसमें क्या होता है, everything tomorrow.